حاضر خبرناک کے ساتھ کا مبارک مہینہ جہاں عبادت کا ذوق زور ہے، وہیں مفاد پرست لوگ اس موقع کا فائدہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، ہو جاتی ہیں اور اگر ملتی ہیں ان کی قیمتیں آن سے باتیں کرنے لگتی ہیں اور قانون کے رکھواله اس سب کو روک لیا گیا ہے۔ دیکھ اور تم بولی جناب کی نام تیرا اعجاز منہ تیرا اعجاز ہے حسن حقیقت ہاں جہاں یہ داستان چھوڑا بنا جہاں بھی گیا مارا ہے جناب سیدھا بھی نہ ہے ایک پھڑ لیا پڑا دی وہ جناب پول دے تھلونا سگریٹ پینے مزہ لینا تو غالب بنن دیا مطلب نشے یاد پڑا ہوتا کی یاد نہیں ہے خیر ختم کردا صاحب جی پولیٹکس زندگی ہے تو تسی کوئی عام آدمی رہے ہو بات تو ویسے ہی کہہ رہے ہیں، تیرا ماں پیو ہے آہو ماں جوان ماں پیو جوان ماں پیو ہے ماں پیو تو ہے ہی ہے نا لمیا پاتر میرے نو لمیا نا انہوں اچھا بوٹے تھانے جناب زیادہ روب تیرا ہے آپ تینوں پتا پھر کام صرف مارنا ہی نہیں ہوتا لائے بھی وان بھی ہے تو ہی پھر نہیں تو میں نے سوچا میٹر خراب ہو گیا نا ایک ون بھی لمبی ناف کٹنی ہے دیکھیے سر میرے ساتھ مت کرنا ہاتھ مت بھجا تیریاں تارا ننگی کریں ہاں جی لیکن ہاتھ پکا کے دے منگا لو چون کٹ دیا گا ویلے بیٹھا میں دسا ہونی ٹھہر ایک ان کو ہی آنکھ اور شکر ہے میڈیا نوجوان زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے صرف ون ویلنگ کرتے آپ کو اگر اپنی کریں نہیں تو دوسروں کو خیال کریں شرم چاہیے نوجوان تباہ کرنے سب کو جا رہا سی 15 منٹاں چ پہنچ گیا ہلا راہ گھنٹے تہاڈا دھیان ہے بڑی مگائی ہے دکان تے ٹھنڈی کھانے آئے بیٹھے گھر نہیں پتہ ہو رہی ہے اندوزی کرتے اور پھر دوشی گرام یہ بات نہیں اسے مات قدم کے اصولوں پہ کام کرتے ہیں کسی کو آٹا ہونا چاہیے سارے شہر چ آٹا مکے والی گل ہے میں محفوظ کر لیں یہ داموں جو تھے آپ غریب کا خون چوس کے کرتے ہے بھائی کتنے بھائی ساتھ ہے مجھے 800 میں نے بھی تیری پسمان محسوس ہوا ہے کیا مطلب 780 بھائی یہ کنزیومر ہے اگر آپ اپنی گھر کا خرچہ چلاتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا 5-5 10-10 روپے کی بات نہیں کر رہی ہم کی بات کر رہی ہوں اپنی جیب جو اپنا خرچہ نہیں ساڈا کی خرچہ صاحب نے گھر کا خرچہ نہیں کر دی اچھا ہاں اور کیوں میں یار خراب کر رہے ہیں تہاڈی مہربانی جتنا بھی خرچہ کردا ہے اے خدا دا میری جان چھڑا دو میں
डेथ हो रही थी के और इसे वो दिल नहीं लगता एक बावे वाली गेम रख ਪਿੱਛੋਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ मैं तो कहने नु 4-5 लीटर ਉਹ ਲੰਮਿਆ ਕਿੱਥੇ ਪਾਲਾ ਸੌਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਭਿਆ के साथ बदतमीजी कर रहे हैं मेरे मामू MP ओए बड़े एमपीए ते बड़े देखे मैंने मैं ਉਹਦੀ ਛੇੜ ਐਮਪੀਏ ਹੋਣੀ ਆ गल है मेरे बच्चा कि ठहर जा एक मिनट जी थाने जी जिहदे नाल करी ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਖਲੋਣਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮਿਲ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਨੇ ਐਮਪੀਏ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀ ਇਹ ਫੁੱਲ ਕੋ तारुफ कर आपका तारुफ नाम है आपके ਫਵਾਦ ਖਾਨ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀ ਆਪਣੀ ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਆ ਤੇਰਾ सागे बजदा वजह हेलो जी सर जी जी अस्सलाम वालेकुम सर आ गया फोन जी सर जी जनाब का खात्मा अर्ज कर रहे हैं और नहीं सर बड़े दिन हो गए तू चक्कर ही नहीं लाया कौन जी इजाज हाँ जी बरखुरदार है बड़ा भतीजा मैनू दसिया ही नहीं उन्हें हाँ जी और नहीं सर नहीं तो छोटे जे काम में पहले तो एडे बड़े मुल्क छड्डे ने कभी कोई तकाजा किया है नहीं सर सर हुक्म की तामील होएगी कोई गल ही ऐसी नहीं ताबेदार सर नहीं मैं लावांगा चक्कर इंशाल्लाह ओके जी ओके ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ मेरे लिए गड्डी तो मुंडे को छड़ गया क्या जा मेरे पुत्र इधर अपना थाना इधर चाचा इथे SHO जो मर्जी आओ जाओ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ जा ਨਹੀਂ मेरे पुत्र को वाल्मीकि जी फड़े भी तो मेरे नाल है ना ठीक है पता नहीं ये कैसा थाना है कौन सा SHO है मॉडल थानों में तो ऐसा कुछ नहीं होता चल ये 62 मॉडल थाना है ਉਹ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰਨਾ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਆਪੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਐਵੇਂ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮੁਖਤਦਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏ इसीलिए आपकी आवाम आप पर भरोसा नहीं ਉਹ करती ਗੱਲ ਸੁਣ ਹਸਨ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ वाह एसी ਉਹਦਾ ਚਲਾਣਾ ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸਮਝ ਗਿਆ ਉਹ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲਾੜੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾ ਬਣਾਓ ਉਹ ਤੂੰ ਠਹਿਰ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ हैं ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚੱਲ ਜਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜਾਗੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ वाह जी वाह साहब जी खुश किया सलूट बड़ी मेहरबानी इस झंडे नु सलूट है जिन्हें सानू अपना मुल्क दिता ਉਹ ਤੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਹੱਥ ਵੱਡਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਝੰਡਾ ਫੜ ਲਾ ਓਏ ਫੋਨ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਫੋਨ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਫੋਨ ਮੇਰਾ ਬੈਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖਾ ਕਿੱਥੇ ਹੀ हाँ जी सलाम अलैकुम SHO साहब थाने ही ने जी हाँ जी गल करो सर वाह 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 ਤੇਰੇ वाह। ਫੋਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ नहीं फोन ਤੁਹਾਡਾ ही है मेरी जेब च आ गया सी हेलो हाँ मेरी जान की हाल है है और नहीं मेरी जिंदगी हर वेले तेरी सोच रही थाने ते एवं थोड़ी देर वास्ते आई दा वाह 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 हाँ हाँ ए लड़की दी आवाज ओए लंडे दी रेड़ी लाई ने थे व्हाट रबिश और नहीं सोनिया नहीं कि गल्ला करदी नहीं तू शॉपिंग चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए ਹਾਏ बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए और सुनिए सारे ATM सारे क्रेडिट कार्ड तेरे तो कुर्बान कर दे को गल है आया मैं 10-15 मिनट विच आया बस एक नशेद राय दी तफ्तीश करके आया मैं आ रहे ओके ओके गुड बाय ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪਰਚੇ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ना ये निकाह सिर्फ मैं कीते होर किसी ने नहीं कीते ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ बड़े ने कीते थे 10 सारे नो ले भी बूटिया ਜੀ ਸਰ मैं जरा तेरी भाभी की शॉपिंग करानी मैं जरा ते थाना हुन तेरे वाले ही समझ गया ਓਕੇ ਸਰ बस चलो चलो जी चलो उठो ਉਹ जल्दी ਠਹਿਰ ਜਾ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ SHO ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਥਾਣਾ ਖੁੱਲਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ हाँ जी रमजान की शॉपिंग जो करवानी है ਜ਼ਾਹਰ ਆਈ ਫੇਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕभी SHO साहब उल्टे पांव क्यों चले आ रहे हैं वापस CM साहब ਖਾਦਮੇ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਲਵਾ ਬੈਠਾ सर आप गालिबन रमजान के लिए थानों पर चेकिंग करने आए सर यहाँ कुछ नहीं आज इंसाफ आपकी दहलीज पर है ये रजिस्टर चेक करवाओ
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਠਹਿਰ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਫੜਿਆ ਸਰ। सर आपकी तवज्जो दिलाऊंगी, ये लड़का अपने मामू की पॉलिटिकल सीट का फायदा उठा के वन व्हीलिंग के केस से निकलना चाहता है। जरा जरा इधर आएंगे। आओ सामने आओ आएंगे। बेटे, बेटे आगे आओ, उधर मुंह घुमाइए। उधर मुंह करे जिधर कहते हैं। जी मेरा ख्याल है आगे तुसी आओ समझदार। गेट लॉस्ट ओ दौड़ जा, शक्ल गायब करो। दौड़ जा, अच्छा आजा। जी, अच्छा जा रहे हैं जी, जा रहे हैं। और तू बैठ दे। बैठ जाइए। तू बैठता क्यों नहीं है यहाँ पर? खादिम आला, आपने इतने छापे मारे हैं लेकिन क्राइम रेट पर काबू आप फिर भी नहीं पा सके। छापों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा, नामुमकिन है ये बात। ये चिराग, ये बल्कि चश्मो चिराग अशराफिया के हैं। ये इनका कला कमा करना जी बहुत मुश्किल है। इनके कला कमा करने के लिए हमें दोबारा आना पड़ेगा। दोबारा? जी, इस बुराई को खत्म करने के लिए हमें चौथी बार भी आना पड़ा तो हम आएंगे। हमें आना पड़ेगा इक़्तिदार में दोबारा। ए दीजा, ए बीबी दीजा, होए 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 वे छड़ दे, मेरी जान छड़ दे। ए मैं तेन किहड़ा पिंजरे च बंद कीते जेड़ा छड़ दे। जा माफ कर, चल जा। है भी मेरी खैर होई जी जान। ए भले हुन तेरे बच्चियां नहीं कह रहा। मैं क्या, किथे मेरा बंदा? हाँ, किन्ने बंदे बैठे जे तेरा केड़ा? सारे ही बंदे अल्लाह के हैं। मखलूक सारी काबिल एहतराम है। आप किसको ढूंढ रही हैं? हाय हाय सरताज, इन्होंने सानू किथे बिठाया है? पहले धुप्पे पाया सी, हुण छावे पाया है। हाय मैं मर गई, सानू इन्होंने थल्ले बिठाया है। बिल्कुल तेरे ते गए ने। तो क्यों चलन दिया? खादमे वाले साहब आप बैठे हुए हैं यहाँ पे? कौन लोग हैं आप? आपको तो मैंने देखा ही नहीं। उठ परे परे, देखिए आप, साहिल है। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साहिल ही नहीं। बैठिए बैठिए। खादिम आला साहब, हाँ जी, मैं इनके मसले को सुनना चाहता हूँ। आप मुझे अपना समझ के बताइए। ये जो आदमी, ये जो SHO मेरे खामन को नाजायज यहाँ पे लेकर आया। तेन थाने लेंगे, वार्ड च नहीं लैंदा। तुसी किन्ने गटरां दे टक्कर खाए ने, वो सारे इन्हें चुके जे। ये देखे झूठे इल्जाम लगा रहे, वो तो इतने शरीफ है। खादमे आला साहब जेड़े तुसी वाटर फिल्टर लवाए ने जी, ओदियां टूटियां इन्हें लाइयां जे। आप किस पे इल्जाम लगा रहे हैं? वो खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते हैं, वो बड़े घर के चश्मा चिराग हैं। आप जानते नहीं है वो किस बीवी के खामंद है। बहुत अच्छे, मेरी बीवी कोंडोलीजा राइस है। राइस जितना पुराना हो उसकी उतनी ही कीमत बढ़ती है सर। आपने अपने गोदाम में कितने किलो राइस रखा, इस पे हम आएंगे। कोनालीजा राइस पर भी हम आएंगे। सारे वर्दी ला के फिर तो अंदेज में मैं जावा। वर्दी ला के मैनू दे देगा। थले कुछ पाया ही? आज थले कमरा पाया। ए बाजी, ए देख कोई मौला दे ना दे। रमजान आता नहीं कि आप जैसे प्रोफेशनल फकीर सड़कों पे आके मांगना शुरू कर देते हैं। मैं कहना रमजान च तो फकीर रहन जांदे जिवें नेरी च छापर आउंदे आ। ए बाजी सड़कां ते जाके मंगना, होर साडे लिए किहड़ा ईवान बनाए हुए। बूटा भाई, आप तो जानते होंगे कि रमजान के आखिरी रोजे तक ये भीख मांगते हैं और उसके बाद एयरप्लेन की टिकट्स कराकर दूर दराज इलाकों में छुट्टियां मनाते हैं। साडे नाल ते यही चंगे आ। खादमे आला साहब, पंजाब च सिर्फ इक्को ही थाना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਥਾਣੇ ਜਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣਾ ਹੈ। खादमे वाला साहब, आपको बताऊं, ये जो आपके प्यारे SHO साहब है ना, हाँ जी। ये दफ्तर छोड़कर, हेलो हेलो ड्यूटी हेलो, ओ छोड़कर गागी तेनू की गल की है? अपनी अरे बेगम हेलो, साहिबा मेरी गल तो को सुन। रमजान कभी की इत्थे तेरे नाल शॉपिंग बदतमीजी कराने कीती? जा रहे थे। हेलो, तेरे कभी बदतमीजी कीती? आप करके तो देखें। नहीं, मैं तेरा कर भी लवा तो की कर लगी तू मेरा? हाँ जी, हाँ जी। आप इसकी बेगम की को बात बता रही थी। वो बेगम मेरी फौत हो गई है, दस रही सी। ए बाजी 10 रुपये ही दे दे। नहीं है मेरे पास। ए कुछ मेज से नहीं कर दे। और ये जादूगर का पिटारा नहीं है। और कोई पर्स ही कर दे। कह दिया ना, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। खाली मेज ला के बैठी आ बार दो मंगन चली, सारी एनर्जी वेस्ट करा जे कुछ नहीं तेरे कोल ते घर जान दा किराया मेरे तो ले ले। ओ खादमे आला साहब, खुली कचहरी मका लो, असी जाके सुबह रोजा भी रखना है। आपके इस थाने में क्राइम की क्या रेशो है? काफी है। जीरो क्या? 007। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। SHO साहब, मेरा पर्स चोरी हो गया। खुदा दी कसम मेरे को नहीं, अल्लाह की कसम मेरे को भी नहीं। अल्लाह दी कसम मैं यही हरकत कदी जिंदगी च नहीं की। मैं तो बाहर ही नहीं गया सवेर दा थाने। मैं भी उधर इतने बैठा, मेरी कुर्सी खोली उन्होंने। अरे मैं रिपोर्ट दर्ज करवाने आई हूँ SHO साहब। क्या हुआ बीबी? अरे मेरा पर्स चोरी हो गया,
ये भी सही बात बताओ, ये चोरी हुआ है, ये छीना क्या है? मेरा मतलब है मुझसे छीन के ले गए। हाँ ये क्यों बात। ये गलत बात कर रही हो? छीनने जाने पे दफा और है, गुम होने पे दफा और है। 2 मिनट के लिए आप जरा यहाँ से दफा हो जाएं। और मुझे इनसे बात करने में, खातून से बात करने की एक तमीज होती है। आप बैठिए और आप थोड़ी सी परा होइए, आप जरा उरा होइए और यहाँ बैठिए। अच्छा, जिस दिन ये आते ना उस दिन लेडीज केस भी बहुत ही आते हैं। तो आप ये बताइए कि आपका पर्स चोरी हुआ, कैसे हुआ? खादमी आला, मैं चौक में अपनी गाड़ी के अंदर बैठी थी, बस अचानक मेरा पर्स मुझसे कोई छीन के ले गया। गाड़ी में से कौन पर्स चोरी करके ले गया आपका? पिछली सीट देखो, पहले बैठा होना। अरे मेरी गाड़ी का एसी खराब था और मैंने शीशा खोला हुआ था, पर्स मेरी साइड पे पड़ा था और वो मुझे पिस्तौल दिखा के पर्स ले गया। तुम्हें क्या हुआ है? आज मैं बाहर न दे ही पर्स मेरा होना से। क्या? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਏਸੀ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। वाह वाह वाह, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। शाबाश। क्राइम कंट्रोल ना करना, उनके एसी के पीछे पड़ जाएं। और एसी छोड़ेंगे तो डीसी के पीछे पड़ जाएंगे। हुकूमत को ब्लेम करते हैं हर बात पर। यार आप तो कह रहे थे आपके इलाके में क्राइम रेट 0 है। जी। तो ये जो लड़की यहाँ पर बैठी है, ये पागल है। जी। इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। जी। ये बकवास कर रही है यहाँ पर बैठी। जी। क्या बकवास है? जी। ये भी पर्स एक ही चीज थी। अरे पर्स में मेरा मोबाइल था, कैश था, क्रेडिट कार्ड थे, एटीएम कार्ड था, उसमें मेरी गोल्ड की ज्वेलरी भी थी। देखो ना बीबी, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, 골ਡ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਏਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇਰੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ, ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। एसएचओ साहब, आप उनकी एफआईआर क्यों नहीं काटते? भी तफ्तीश कर रहे हैं, एफआईआर तू आगे थे कट ला। ਉਹ ਬਾਜੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ FIR ਕੱਟਨੇ ਆ और ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੂਟ ਕੱਟਣ ਦੇ। गलती सुन लो। हाँ बोल ली। अरे बाकी सारी चीजों को तो छोड़े, उसमें किसी का दिया हुआ तोहफा भी था। हाँ, तफ्तीश गई और बातें। वो बंदा कौन है जिन्हें दिन तोहफा देता है? ਤੋਹਫਾ ਉਹ मैं ਤੋਹਫਾ पहुंच गया। खादिम आला साहब, तू इधर सोचो, जिद जोर दियो। हाँ जी। बीबी, जिस बंदे ने तोहफा दिता ना, तोहफा होगा कीमती। उससे बंदे ने दे पीछे बंदे लाए ने जेड़े दा पर्स खो के ले गए ने। एसएचओ साहब, कोई तोहफा देकर पीछे क्यों लगाएगा बंदे? और बीबी आजकल बड़े बड़े चवल लोग मैंने तो जी नहीं पता। बिल्कुल आप जैसे। हाँ, हैं? ਉਹ ਤੋਹਫਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਦੱਸੇਗੀ? एसएचओ साहब, असल मसला तोहफा नहीं वारदात है, आप उनकी तफ्तीश क्यों नहीं करते? तफ्तीश बीबी की करनी है, मैं तो असल मुल्ज़िम तक पहुंच गया। हाँ क्या मतलब? बीबी, मैं तेरे बार बार कही जा रहा है, मैं तेरे लिहाज नहीं करना, मैंने 10 दे तोहफा की। जी वो तोहफा। एसएचओ साहब, आप खादिम आला का लिहाज भी नहीं कर रहे। तो दसेगी तो मैं तफ्तीश करांगा, मैं सावरी जादू करता साला। आपकी मैं पेटी उतरवा दूंगा अगर आपने बदतमीजी की। कोठे से पई मेरी को रजाइयां पई उतरवा दो। भैया आप मुझसे पूछे किस इलाके में चोरी हुई है, मैं आप- हाईलाइट करें। जाए बकू गया तो बीबी। इकबाल टाउन। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ। ਉਹਦੇ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਪਰਸ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। हाँ जी, 10 दिन बाद दी फुफी लगे अज तक नहीं आई। अच्छा, अगली गल जड़ी है, इर्द गिर्द की लोकेशन सी? दरख्त ही दरख्त थे। ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਮਸਵਾਕਾ ਲਾਉਣ ਗਈ ਸੀ? बीबी आखिरी गल तेरे मैं कर रहा, सही सही दस दे तोहफा दिता किने सी? मेरे अब्बा ने। लख लानत है मेरी तफ्तीश ते। यहाँ से एक तफ्तीशी ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर है ब्रेक के बाद। अच्छा सर, ये बताइए कि आप अपना रोजा कैसे इफ्तार करते हैं? मैं इफ्तार की दुआ पढ़ता हूँ और इफ्तार कर लेता हूँ। और कैसे किया जाता है? सर ये तो मुझे भी पता है कि इफ्तार की दुआ पढ़ने के बाद ही आप इफ्तार करते हो। सवाल फिर सोच समझ के किया सर करें। आप क्या खाते? कोई वजनदार सवाल करें। नहीं, मुझे सलीम लोग- साहब भी देख रहे ना, पहले खुराक खाते ने, बाद च दुआ करते ने, फिर शुक्र अदा करते बच गए आज भी। अच्छा जी, वजीर आला ने पूरे रमजान दी अफ्तारियां डायरी ते लिखियां ने। सही कह रहे हैं सलीम आप, सियासी इफ्तारियां होती हैं। हाँ हाँ, वो करते रहे ना सियासी अफ्तारियां, असी करते हैं मरासी अफ्तारियां। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਅਫਤਾਰੀਆਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ? ਇੱਕ ਸਮੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਫਾइल ਤੇ ਸਾइन करा लेने। हाँ सलीम, सियासी इफ्तारियां हो रही हैं, जोरों शोर से हो रही हैं। ਹੁਣ ਤੇ ਅਨਕਰੀਬ ਸਿਆਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ हैं गिरफ्तार वफा, वाह जिंदा से घबराएंगे क्या? वाह वाह। जो दाम उल्फत में गिरफ्तार हुए, वाह। उन्हें छोटी मोटी गिरफ्तारियों से क्या लेना देना? ए कटे खड़े दे सिर वालिया। सर मैं कहती हूँ सफर जरा ज्यादा है, घड़ा पक्का कर लें। खड़ा पक्का कर लूं?
मैं आपको सोनी दिखाई दे रहा हूँ भाई। आपने मुझे कब ये कहते देख लिया, मैनू पाल लगा दे वे, कड़िया मिन्नतां तेरियां कर दी ते कड़ी कड़ी कर दी। कड़ा पक्का ना करो, तुसी वोट पक्के करो बस। बल्कि जेड़े ऑरेंज दे टोए कीते ने ना वो पक्के करो तुम। नहीं उधर देखो ना कि कड़ा पक्का कर लो, बंदा पूछे तू विच कुल्फियां लाउणियां। नहीं सारी गलती तुहाडी है आयशा जी, तुसी कड़ा क्यों पक्का करा रहे? तुसी शाम है धुआं धुआं गाना उन्होंने बजा के। इतना खफा होने वाली कौन सी बात है, मैंने तो मजाक किया था। ते असी भी मजाक ही कर रहे सी, किहड़े पत्थर मारन डए हैं। अच्छा इन्हें हर बंदा मजाक ही करता बेचारे। शैतान। कोई कूलर कह रहा है, कोई गीजर कह रहा है, कोई कड़ा कह रहा है, वो तो इंसान क्यों नहीं बनता यार? देखिए कोई उनकी जिसामत को लेकर बिल्कुल मजाक अच्छा नहीं करे। प्लीज जिसामत दी जे गल नहीं हुई, गल कड़े दी हो रही है। ये नवा क्यों नहीं देना प्लीज, उनकी समझ कोई बदबात ना करे। नहीं मैं ये नहीं चाहती कि कोई भी ऐसी बात ना, मेरी बात करनी ही नहीं। इतनी बुरी में किसी सूरत नहीं लग सकती। हजूर इत्थे आके देखो, इस तो ज्यादा बुरी लग रही है। देखो असी ताड़ी रिस्पेक्ट करने इथों भी यही लग रहा है। ओए ओए शिमला पहाड़ी दिया बच्चा, ऐसे नहीं कहते। वैसे प्रोफाइल तो भी उतनी बुरी लग रही है। अच्छा उस दिन मैंने आगा साहब को एक इफ्तारी पे देख लिया। अफतारी कर रहे सन ना, तो और क्या बात जो किसी ने नहीं की होनी। नहीं तो आपने कैसे देख लिया? आप उस होटल में वेटर हैं क्या? जहाँ वो जा सकते हैं इफ्तार करने, मैं नहीं जा सकती। एक मिनट यार, कोई ना बोले, कितने देखा? अच्छा भाई मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने आपको देखा है भाई, आपकी फैमिली भी साथ थी। अच्छा हाँ तो और क्या? यानी कि कट्टी कट्टा नाल सी। कट्टी कट्टा नाल सी, एक मेरी पालतू तेरे अर्गी बकरी भी नाल सी। अच्छा बकरियों को अंदर नहीं जाने दिया जाता है, कट्टी कट्टे ने जान देंदे, यानी उन्होंने गल सच्ची है। आगा साहब बुफे लगा हुआ था और आप हर डिश के आगे प्लेट भर भर के वापस टेबल पे जा रहे थे। ये है ही बड़ा बूफा है। नहीं तो उसे प्लेट दे विच ही खाना सी, मैं सारे बूफे च बुक्कां च लेंदा सालन भाई देना, भाई थोड़े चावल देना। सलीम आप यकीन नहीं करेंगे, जब ये बिरयानी वाली डिश के आगे आए तो इन्होंने इतना ढेर बिरयानी का लगाया। हाँ इन्ना ढेर बिरयानी ज हथ मेरे झंडा सी, मैं उत्ते लाउण गया सी बिरयानी दे। झंडा नहीं सीगा, बेलचा सी जिदे नाल मुंह च पांदा। फिर सबसे ज्यादा मजा तो मुझे तब आया जब ये स्वीट डिश के पास गए। हाँ उसले तो मैं जुत्ती लाती सी, कच्चा पा के विच वड़िया सी। ਇਹ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵੀਟ ਡਿਸ਼ ਵਾਲ ਵਧਿਆ ਨਾ, ਸਵੀਟ ਡਿਸ਼ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ। ਬਦਾਮ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਖਬਰਦਾਰ ਵੀਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਾ ਤੱਕ। और स्वीट डिश विचों कहने लग पई मैं अचार हाँ, मैं अचार हाँ, मैं अचार हाँ। पर आगा साहब ने मुस्तफा कुरैशी की तरह बड़क लगाई, बेटे से कहा बड़ी प्लेट लेकर आओ। और आप अंदाजा करें कि इतनी खीर तो कोई वो फिर एडी वड्डी प्लेट लेके आया कि होटल के अंदर वड़ नहीं सी रही है ना। वो फिर उन्होंने बाहर सड़क पे रख दी खीर, दौड़ी है, मैं पीछे गया, भैन मेरी मैं नहीं खाता। ओ भैन मेरी गल सुन ला, ओ मेरी भैन हो गया। अब देखिए पीछे दौड़ दौड़ कहता रहा भैन मेरी मैं नहीं खाता, डिशा आपस च कह रही सी, गल्लां च नहाना चवल इंज ही कहता हुंदा है। सलीम आप सोचे कि इन्होंने इतनी खीर खा ली, इतनी खीर खा ली, इतनी खीर खा ली, पाकिस्तान से खीर खत्म हो गई। इतनी खीर खाई, खीर का रिवाज खत्म हो गया। इतनी खीर खाई, पाकिस्तान का दूध खत्म हो गया। इतनी खीर खाई, चीनी खत्म हो गई। मैंने पूछा आगा जी आपके पेट में तो जगह ही नहीं, आप सांस ही नहीं ले पा रहे। हाँ मेरे पेट में जगह ही नहीं थी, तू ट्रक खड़ा करना सी होता है ना, उसमें तो बिल्कुल जगह ही नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मैंने अंदर पेट में जाके देखा है, अंधेरा ही अंधेरा था। भाई ये क्रेडिट तो दें, ये राज खान दिया मस्तियां हमारी हुकूमत में हुई, हमारे दौर में हुई। गरीबों मस्कीनों ने पेट भर के खाया, जिन्होंने 5 स्टार होटल को दूर से देखा था, वो भी बूफे के बहाने अंदर जाके पेट भर के खाया। मुझे याद है आगे ने आपसे पूछा, आपने आगे से पूछा टुरिया जानदा है, दोनों ने कहा नहीं। मैंने आपसे पूछा आपका पेट भरा, आप रजी हैं? आपने कहा नहीं मैं थक गई। अच्छा जी इसीलिए कहते कि कम खाना चाहिए इंसान को ताकि बदहजमी ना हो। सलीम यही तो बात कर रही थी कि जैसे आजकल रमजान है, रोजा इफ्तार होते ही हम 3rd ईयर में खाना शुरू कर देते हैं। ओए होए। और ये सबसे ज्यादा नुकसानदेह है हमारी सेहत के लिए। कैसे? सबसे पहले तो आगा साहब और शहरी जैसे जो जग होते हैं ना जूस के और शरबत के,
उस पे अटैक कर देते। हाँ जी, वो तो 12 बजे उन्हें वेखण लग पैंदे। देखिए सलीम, रोजा इफ्तार होते ही सबकी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा मशरूबात पिए जाए, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि उसका असर आपके स्टमक पे कितना बुरा होता है। पूरे दिन का खाली स्टमक जब पानी से भरा जाता है, उसके साथ चीजें उसमें, जाहिर है आप पकौड़े भी खाते हैं, आप फ्रूट चाट भी खाते हैं, जब वो चीजें एकदम आपके मैदे में जाती हैं तो उससे आपको बदहजमी होती है। और बदहजमी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इंसान अच्छे ख्वाब भी नहीं देख सकता। सोएगा, सुकून की नींद आएगी तो अच्छे ख्वाब। सही कह रहे हैं आप। वाकई सही कहती हैं आयशा जी, लोग इन्ना खा लेंदे ने तराबियां तो बाद हर बंदा फकी लभ रहा होंदा। तो फिर कैसे कम खाना चाहिए? प्यास तो बंदे को बहुत लगी होती है। यही तो एतदाल है। आप 1 गिलास शरबत ले लें और उसके साथ एक खजूर। सबसे पहले आप खजूर से रोजा खोलें, ठीक है। उसे खोलने के बाद आहिस्ता आहिस्ता शरबत का इस्तेमाल करें। एकदम से जो हम उंडेलते हैं ना, वो भी आपके लिए अच्छा नहीं होता, वो स्टमक में गैसेस पैदा कर देता है। एक खजूर सिर्फ? एक खजूर। हेलो, बड़ा सस्ता रोजा दसन। आयशा, आपने ये तो ठीक कहा कि एक खजूर और शरबत के गिलास से जो है रोजा खोलना चाहिए, लेकिन जो भूख की वजह से टेम्पटेशन पैदा होती है उसे कैसे रोका जाए? जुनैरा, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पूरा दिन जैसे रोजा होता है, हम सोचते हैं कि हमने इफ्तार में क्या खाना है, क्या बनाना है। तकरीबन आधा दिन हम इसी सोच में गुजार देते हैं और बाकी का आधा दिन उसकी प्रिपरेशन में गुजार देते हैं। पूरा साल हम फ्रूट चाट नहीं खाते, लेकिन रमजान में 30 के 30 दिन फ्रूट चाट जरूर बनती है। लंब कट देने हैं जी। पकौड़े जो अक्सर हम बरसात में खाते हैं, रमजान में रोजाना बनते हैं। लेकिन ये मेन डिश होती है रमजान में। बिल्कुल। ज्यादा मीडिया का कसूर है। कैसे? हर चैनल पे कुकिंग शो 12 बजे लग जाते हैं। अब मैं आपको मछली बनानी दिखाती हूँ, अब ये पकौड़े कैसे बनते हैं। और तेरे अर्गी औरत बनावे ना, कत्तन नहीं बंदा खांदा। जब आप रोजा खोलते हैं, आपको खुद को ट्रेन करना पड़ेगा। देखो, रोजे का यही तो मतलब है कि खुद को ट्रेन करना। कैसे? हम पूरा दिन नहीं खाते और जो ही आजान होती है हम खाने पर टूट पड़ते हैं। यही तो हमने खुद को ट्रेन करना है कि थोड़ा रुक के आहिस्ता आहिस्ता अपना रोजा खोला जाए। आप खाएं, सब कुछ खाएं, लेकिन थोड़ी मिकदार में। और जब आप सब से खाएंगे तो यकीन करें सब चीजों का टेस्ट भी महसूस होगा। यानी आहिस्ता आहिस्ता खाइए। जी बिल्कुल। उधरों चंद नजर आज वे ईद है ना। आगा साहब, मैं आपको काफी समझदार समझती थी, लेकिन मैं काफी गलत थी। नहीं, मैं समझा। आप कहने लगे मैं तो आपको बड़ा समझदार समझती थी, लेकिन आप तो मुझ जैसे निकले। समझदार की इन्हें ऊंट सी एनजी तक कीता है। अच्छा, मैं उनके खाने पीने के बिहेवियर की बात कर रही हूँ। आप सोचे ना कि रोजा इफ्तार करते करते अगर ईद आ जाएगी तो वो एक रोजा तो नहीं हो सकता ना। भैया आहिस्ता आहिस्ता आपने बात कोमे ची होता है जब गल आहिस्ता आहिस्ता का मतलब ये नहीं आहिस्ता आहिस्ता कि आज आप कुछ खाएं, कल कुछ खाएं, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप को आदी करें। वक्फा दे दे कर खाइए, इससे आपकी सेहत को कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, वक्फा दे के यानी ऐस रोजे च मैं फ्रूट चाट खा लवा, अगले च पकौड़े खा लवा, है ना। अच्छा, एक सबसे बड़ी ज्यादती जो हम अपने साथ करते हैं वो कीजिए, वो भी दस दो खैर ना। वो ये है वाजिद कि खाना यानी इफ्तार करते साथ ही हम चाय के मग उठा लेते हैं। हाय हाय। आहो, तो चाय ना पिए उस वक्त। आधी आवाम जाहिर है चाय पिएगी, कहवा पिएगी, प्यास पीने का दिल करता है। ओ सर, मैं यही अर्ज करने वाली थी कि जब आप वक्फा नहीं देते खाने और चाय के दरमियान, तो जो खाने के न्यूट्रिएंट्स हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते। कितने घंटे आपके स्टमक को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है जब आप फौरन खाने के बाद चाय ले लेते हैं। क्या बात है डॉक्टर बिलाल रंधावा साहब। लेकिन आशा जी, कुछ लोग हैं वो सिगरेट की बहुत तलब होती है रोजा खोलते ही। तेरे का बंदा ना रोजे एक सिगरेट पी के बेहोश हो जाता। यहाँ ले रहे एक ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर है ब्रेक के बाद। रमजानुल मुबारक के इन दिनों में हमारे साथ एक दफा फिर मौजूद हैं शहबाज हुसैन, फयाज हुसैन कवाल, बद्दुम अली वाले। आइए उनसे कवाली सुनते हैं।
कड़ा तोड़े ना मैं देखूं गैर को ना मैं तो है देखत हूँ सांसों की माला पे सांसों की माला पे सिमरू मैं भीगा सांसों की माला पे सिमरू मैं भीगा सिमरू मैं भीगा नाम सांसों की माला पे सिमरू मैं भीगा नाम अपने मन की मैं जानू और भीगे मन की राह सांसों की माला पे माला जब कहते बात बनी मैं सांसों की माला पे प्रीतम का कुछ दोष नहीं है प्रीतम का कुछ दोष नहीं है वो तो है निर्दोष वो तो है निर्दोष प्रीतम की नजरों से ये जीना है किसका सांसों की माला पे सिमरू मैं भीगा यारों मेरी ना जाए कांटों पे माला पे सिमरू मैं भीगा ओ सजनी बाती तब लिखूं जो प्रीतम हो परदेस मन में पिया बसे भेजूं किसे संदेश जल डालूं किरकिरा मुझसे सुरमा सहाना जाए जिन नैनन में पिया बसे भला दूजा कौन समाए साजन हम तुम एक हैं जो कहन सुनन में रो मन को मन से तो लिए तो दो मन कभी न हो इस शब्द पे खेलूं पिया प्यार की बारी जीतू तो तुझे पाऊं हारूं तो पिया तेरी सांसों की माला पे सिमरू मैं भीगा नाज़रीन, इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।